ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੇ ਬੂਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆ ਸਿੰਧਣ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਦੀ ਮਠਿਆਸ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਚੋਲਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ। ਸਹੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਟਿਆਣ ਆਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਸਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਸਨ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਸਨ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਪਿਓ ਵਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਸਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਮਿੰਟ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ नहीं, वो तो चलो ठीक हो गया, दूध निकल आया। आमिर भाई यहाँ दूध बेसिकली अभी ताज़ा बकरी के नीचे से निकाला है जी और टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने या पीने का क्या मकसद था जी, वो भी दोस्तों तक पहुँचना चाहिए। तो ये है एक देश है ना भी ये बकरी सी किते गब्बन ना रखी। हाँ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਭਲਾ ਸਮੈਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਆ ਦੁੱਧ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾ ਭਾਰਾ ਦੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾ। सही है। ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਡੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾ। सही है। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। बाहर पतला ਇਹੀ देंगे। ਗੱਲ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣੀਆਂ ਖਾਣੇ, ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ। सही। ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੰਡਾ ਵਾ ਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਡੇ ਰੰਗਾ ਜ਼ੋਰ। सही है जी। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर फीड को डिज़ाइन करके ना इसको बनाया है और इसकी 6.5 फैट है। 6.5 इसकी फैट है। ठीक है। इसका हमने ये गाय से भी जीता है और बफलो से भी जीत गया। सही है। इसके अंदर जो इसकी आप कहते हैं ना बटर कंटेंट, इससे कहते हैं टेक्निकल वर्ड में जी। यानी कि मैंने 5 किलो बकरी का दूध लिया, गाय का लिया और भैंस का लिया। सही। उसमें से हमने एक चीज़ बनाई मनपसंद सेम फार्मूले से। गाय वाले में से निकला जी 900 ग्राम। सही। भैंस वाले में से निकला 1 किलो 250 ग्राम। सही। बकरी वाले इस जो हमारी फीड के ऊपर ये बकरी थी, इसने 1 किलो और 500 ग्राम, 1.5 किलो उसमें से रेजिड्यू निकला। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, हाँ जी। ਮੱਝ ਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ, ਡਾਚੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ इसमें अंग्रेज प्रोटीन भी भी है, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ लिखे बंदे बाकी से हाई है। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ और ਦੁੱਧ ਵੱਜ फैट ਜਾਂਦਾ। कंटेंट जो है वो हमने अपनी फीड से किया है। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। और जो लोगों को इसमें से मुश्क आती थी, स्मेल आती थी, वो भी हमने फीड से कवर की है। सही। ये पीने में बिल्कुल मीठा दूध ਦੇਖੋ है। ਜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਪੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ और ਬਤਾ ये ਦਿਆਂਗੇ। H2 मिल्क है, ये आपको कच्चा ही पीना चाहिए। ਕੱਚਾ ਪੀਣਾ ਦੀ ਹੈ ਵੀ अच्छा, बकरी का दूध कच्चा ही पीना ये चाहिए। बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद है। आप कच्चा दूध पिए बकरी का। सही। इसके मिनरल्स विटामिन जो हैं वो आपके बरकरार रहेंगे। सही। उबालने से मिनरल विटामिन उड़ जाते हैं, पीछे सिर्फ कैलोरीज रह जाती हैं। सही है, बेहतर है। अच्छा, इसकी अब क्योंकि कुछ बकरी पे ही काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो इसकी इम्पोर्टेंस को लेके भी बात करेंगे, यूजेज को लेके भी बात करेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सीन है। अच्छा अब जी आप लोग अपने को माशाल्लाह सारे है ही बकरियां को मझ गां है कोई नहीं, सारा यही यूज़ करते हैं या कोई दूसरा भी अपन नाल इस्तेमाल करीदा? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੱਝ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਪੀਣਾ, ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਚ ਮਾਣਾ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਣੀ, ਖੰਡ ਪਾਉਣੀ, ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪਾਉਣੀ, ਜੇ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਬਿਲकुल। तो माशाल्लाह इन्होंने पूछो जी जी। अच्छा आमिर भाई, इसकी कुछ ग़िज़ाइयत के बारे में काइंडली दोस्तों को भी बताएं कि क्या इसके फ़वायद हैं, यूज़ करना चाहिए, क्या सीन है, ताकि लोगों को इसका पता चले ये क्या चीज़ है। देखें जी, हमने गोल्ड प्योर फार्म्स के हमारे हैं बड़े अच्छे भाई, वहाँ से हमने यहाँ पे MMA का इवेंट कराया। ठीक है, कुश्तियों के मुकाबले कराए।
सही। ठीक है, ये भी सुन्नत है कुश्ती जो है जी। तो इसके हमने मुकाबले कराए। तो पाकिस्तानी जो रेसलर हैं उन्होंने इंडिया के, ताजिकिस्तान के, किर्गिस्तान के उन रेसलर्स को उन्होंने MMA में हराया। सही। ठीक है, और उनको हमने तकरीबन 6 महीने बकरी का दूध जो है वो कच्चा पिलाया। सही है। उन्होंने बताया कि उनकी जो एक्सरसाइज का पोटेंशियल है वो बढ़ गया, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था, इसमें एनर्जी ज़्यादा थी, इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा था, तो ओवरऑल मिनरल्स बहुत, इसकी कंपोजिशन ज़बरदस्त है, तो वो बड़े एक्टिव उन्होंने फील किया। सही। हमारे पास जो और क्लाइंट आते हैं वो ये भी आते हैं जी, मुझे वालिदा मेरी 50+ की हैं, गोडों का मसला है, तो जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं यानी कि हड्डियों के जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमें लिख के दे दिया कि अपनी वालिदा को 1 गिलास सुबह 1 शाम आप बकरी का कच्चा दूध पिलाएं। तो हम बकरी घर लेके रखना चाहते हैं ताकि हम अपनी वालिदा को ये दूध पिला सके और उनका ये मसला ऑस्टियोपोरोसिस का, हड्डियों का, ठीक हो सके। सही है। जिस माँ का दूध नहीं आता वो पैदा होता बच्चा ये कच्चा दूध पी सकता है, बजाय इसके कि आप पाउडर और फार्मूले पिलाएं। ये जो है, अब आप देखें कि अहादीस के अंदर इसकी कितनी अहादीस इसके बारे में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से बकरी को चोया, अपने सहाबा को पिलाया। ठीक है, तो इसकी जो तासीर है वो अगर आप इंटरनेशनल देखें तो गोरों ने समझ लिया है, और हम मुसलमान मुल्क होकर हमें इसकी अभी तक तासीर ही नहीं समझ में आ रही, हत्ता कि हमारी अहादीस की किताबें भर चुकी। इस वजह से मैंने आज आपसे फरमाया है कि हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। ना मेरी सुनो, मतलब जो कि बकरी का दुध पीओ ना, बकरी का दुध ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਓਗੇ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੌਵੇਗਾ ਘੱਟ ਤੇ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਈ ਕੰਮ ਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਬ ਦੇਸੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਹਾਏਗੀ ਨਹੀਂ तो बिल्कुल बकरी भी तो गां भी ना, इन दोनों का दूध इस्तेमाल हो सकता। सही है। गां का भी बड़ा तो ये आप इंटरनेशनली आप आ जाती कीमत पे, इस पे बड़ी लोग बहस करते हैं। हमने तकरीबन भी कम से कम भी आप चले मोहतात अंदाजे से 100 ममालिक से हमने डाटा इकट्ठा किया। सही। और हमारे वो जो गोड प्योर के भाई हैं दिल भाई, वो ट्रैवल करके खुद पर्सनली गए हैं, हमारे पास पैकेजिंग पड़ी हुई है। सही। दुनिया भर में गाय भैंस के दूध से इसकी कीमत कम से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा है। अच्छा। और वो लोगों को किसी हदीस में किसी ने नहीं बताया, उनका कोई इससे रूहानी ताल्लुक नहीं, उनका कोई इससे रिलीजियस या मजहबी ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ दुनियावी लिहाज से वो इस बात तक पहुंच गए हैं कि इसकी वैल्यू गाय और भैंस के दूध से 5 से 7 गुना कीमत में ज़्यादा है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च कर लेंगे। सही है। आजकल इंटरनेट का दौर है। जी जी जी। तो हम लोग इससे क्यों कराते हैं? एक तरफ हम अभी माशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है, इसलिए अच्छी बाबरकत हम वीडियो बना रहे हैं हदीस की रोशनी के अंदर, कि हम एक तरफ आशिक रसूल हैं और एक तरफ जिस चीज़ से मेरे नबी ने इश्क किया उससे हम जो है बेजारी का इजहार करते हैं। तो हमें जो है ना इस बात से बिल्कुल अपने आप को इस्लाह कर लेनी चाहिए। मेरी नज़र में तो ये बात मैं कहना चाहता था जो मैंने आज तवज्जुह से कही है। चलें, बहुत आला जी। बाकी इंशाल्लाह इसका कोई चार्ट वगैरह भी हमें भाई को कहेंगे, हमें प्रोवाइड करेंगे, तो वो शुरू में लगाएंगे ताकि इसकी जो अफादियत, ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, उनका आपको आइडिया भी हो सकेगा। बहरहाल मज़ेदार सी वीडियो बनी है जी, एंड करते हैं जी। जानवर कोई भी आ ज़्यादा महंगा लेना चाहिए, सस्ता लेना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए नहीं। साढ़े नाल भी थोड़ी गल ना, असी भी अगे कहने पे लोग साडा शौक होर वा, हुण तुहाडा माशाअल्लाह शौक आ, मेरा बकरी तुहाडी दुध वाली बड़ी चंगी है जी। जानवर बंदा जो खरीदन जावे ज़्यादा पहले सब तो पहले महंगा जांदा लवे कि सस्ता लोग लवे, ये भी थोड़ा तू तो अगे कर रहे हो कि साडे नाल गल हुई उर्दू च दसा है पंजाबी नहीं जिवें उर्दू में भाई पढ़े लिखे सुने साडे किने सानू किने पछाणना है, सानू कोई नहीं जानदा नहीं जी। माशाअल्लाह जी तुसी ब्रांड जे नहीं चाचा अशरफ गुजर ब्रांड है। नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ना अक्सर ये बात, मुझे भी कॉल्स आती हैं, कुछ अरसे से मैं काम कर रहा हूँ और आप लोग भाई कॉल करते हैं। अब मुझे 3 किस्म की कॉल्स आती हैं जी, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन तीनों ही ख़ता पे हैं, मतलब अपने अपने लिहाज से ना, उनको अपनी जगह जगह इसलाह कर। पहला बंदा कॉल करेगा, वो कहेगा जी पैसे नहीं है मेरे पास, सही, लेकिन मैंने काम वहाँ से शुरू करना है जहाँ एक भाई 10 साल लगा के पहुँचा है, सही है, ठीक है। तो ये तो दुनिया की किसी किताब में भी पॉसिबल ही नहीं है ना, सही है। अगर मैं अब बैठ के किसी भाई की मेहनत पे उंगली उठाऊं और उससे मैं ये नतीजा निकालना चाहूँ कि उंगली उठाने से मुझे वो उसकी महंगी चीज़ सस्ती मिल जाएगी, तो वो मेरी खाम ख्याली है, सही है,
ठीक है, जो लोग धोखाधड़ी से काम कर रहे हैं वो अपनी चीज़ उस वैल्यू की नहीं है और वो उनकी है भी नहीं, और उस तरह वो तो एक अलहदा बहस होगी, बिल्कुल हो गई। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया F2 F3 F4 F5 तक वो पहुंचे हैं, इतने साल की उनकी मेहनत है और उन्होंने इम्प्रूवमेंट की और इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, चाहिए तो क्या उनको उनकी इम्प्रूवमेंट का हक नहीं मिलना चाहिए? सही और बात। आप अभी न्यू कमर हैं, आप आ रहे हैं, आपके पास सरमाया भी नहीं है, आप बेसिकली उनसे जानवर नहीं खरीद रहे, आप उनसे उनकी वक्त खरीद रहे हैं, जो उन्होंने वक्त उस पर लगा के उसको वहाँ उस मुकाम पे पहुँचाया। सही है। तो ये भाई तो यहाँ पे इसलिए खता खा गए। दूसरे भाई होते हैं वो फ़ोन करके कहते हैं कि भाई हमें जानवर ऐसा लेके दें जो किसी के पास ना हो, पैसे की कोई परवाह नहीं। सही है। ठीक है, हाँ। ये भाई भी मेरे लिहाज से खता पे हैं, सही। क्योंकि जब आप इस तरह का ट्रेंड सेट करते हैं तो ओवरऑल माशरे में जो है वो बिगाड़ पैदा करता है। सही बात है। फिर जो भाई इस कीमत पे लेके जाते हैं हाँ। उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं होता। ठीक है ना जी। चाहे आपकी जेब फरारी खरीदने की इजाज़त देती भी है, जी। पहले गाड़ी मेहरान पे सीख लें, सही है। फिर टोयोटा पे आ जाएं, फिर ऊपर चढ़ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जाएं। पैसे अगर आपके पास हैं भी तो आप कम से कम ये तो देखें कि जो पैसे मैं लगा के जानवर ला रहा हूँ क्या मेरा तजर्बा उस लेवल पे है कि नहीं है। सही है। और अगर मैं खुद नहीं करना, किसी से करवाना है, तो फिर आप किसी के रहमो करम पे फिर आप बकरी को दोष ना दें। सही है। ठीक हो गया। बेहतर। और तीसरे किस्म के जो भाई हैं वो हैं कि वो कहते हैं कि यार हम खुद करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे, हमें अल्लाह ने जो भी वसाइल दिए हैं उसी में से हम रुए कार ला के अपने आप को फ़रोग देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं। सही है जी, सही है। तो यहाँ अमर भाई ने बड़े अच्छे से क्लियर कर, यानी कि मेहनत करनी है, वो चाहे आप एवरेज लेके उस पर कर लें, बेहतर है। अच्छा आमिर भाई, एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में चले ऐड कर लेते हैं। शौकीन प्लस फार्मर में कोई डिफरेंस अगर आप बताना चाहें दोस्तों को। देखें, जो तो शौकीन है ना जी, अगर वो फार्मर नहीं बनता तो उसका शौक ख़त्म हो जाए। सही है। ये एक जुमले मैंने आपको समझा दिया। सही। शौकीन तो सारे ही होते हैं ना जी। सही है। हर एक का अपना अपना मोहल्ले वकूह है, अपनी अपनी जेब है, अपना अपना वक्त है। वक्त की भी तो एक होती है ना, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। सही बात। कोई कई मामलात में फंसा होता है। जिसको जितना भी शौक है वो शौकीन तो ज़रूर है। सही है। लेकिन अगर वो फार्मर नहीं बनता तो उसका शौक ख़त्म हो जाए। सही है। तो फार्मर बनने से थोड़ा बता सकते हैं क्या मुराद है जी इधर? फार्मर ये बनने से मुराद ये है कि वो बाहर से जानवर खरीद के और मुकाबलों में अपना शौक दिखा के वो कितनी देर गुजारा कर लेगा। सही है। जब तक वो खुद फार्मिंग नहीं करता, अपने घर में बच्चे नहीं लेता, अपने घर में वो नस्ल नहीं पैदा करता जिसके नाम पे जो नस्ल दिखा के वो नाम कमा रहा है, वो अगर घर में फार्मिंग करके पैदा नहीं कर पा रहा, सही है, तो वो बाहर से खरीद के कितना का शौक कर लेगा। सही बात है। बहुत अल्लाह जी। चलें भाई, शुक्रिया।